Hello students of class 11th, to your own channel, your own platform, that is the Discovery International School in collaboration with your YCL, that is a brand of quality education, which brings to you the best coaching facility in the town, that is regarding the NEET and the JEE preparations. Clear? So for that, how you will be accessing to the YouTube channel? Now first, go to the YouTube in your Google, and in that you just write Discovery YCL, and you will be observing our logo over here. You have to just click on that logo. You will be going to our YouTube channel. Now for getting the live updates, for getting the videos, you have to get yourself subscribed first of all. After subscription, there will be a bell icon over there. So just click on the bell icon and you will be getting the daily updates, the daily notifications as and when we will be posting some material today or tomorrow. Clear? So keep in touch, and regarding the videos, you can also write your comments in the individual messages regarding when you are watching that video. If you have any kind of doubt regarding any particular topic, regarding a particular timing of the video, you can just insert your comments over there by writing that this, from this time to this time, this part of the video I am not getting it, so please kindly explain. So our entire team is fully dedicatedly working upon it, so get it betterment in the next future. So let's begin today with the topic, that is regulation of breathing. So first of all, yesterday what we had discussed about the mechanism of breathing, and we had seen that how the process is going on both for the inspiration, that is inhalation of air, and during the exhalation, that is expiration of air. Clear? And how the set of muscles, that is both the phrenic muscles, that is the diaphragm, as well as along with the intercostal muscles, both your external and your internal. So how these three type of muscles are working accordingly and bringing about the process of breathing. Clear? Now today we will be learning a new topic, that is who is sitting over there, which is regulating these muscles to work. Clear? वो कौन है, कौन सा ऐसा हिस्सा आपका है हमारे बॉडी के अंदर? Obviously it will be either the part of the nervous system or certain kind of the chemical center in our body, और वो दोनों करके कैसे करके कंट्रोल करता है हमारा ये mechanism of breathing को. Clear? So let's begin. We will be discussing today about the regulation of the process of breathing. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ब्रीदिंग है, ये एक्चुअली कंट्रोल करता है दो टाइप ऑफ सिस्टम इन आवर बॉडी. क्लियर? सो दिस इज जनरली कंट्रोल्ड बाय टू टाइप्स. वन विल बी योर nervous control, and the other will be the chemical control. क्लियर? अब अगर मैं नर्वस कंट्रोल की बात करूं तो ऑटोमेटिकली यहां पे द प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन्स, द नर्व्स, द कंट्रोलिंग यूनिट्स ऑफ अवर बॉडी, दैट इज द ब्रेन, ऑल विल बी कमिंग इनटू प्लेस. तो हमें देखना है कि ऐसे कौन से हमारा नर्वस कंट्रोल के पार्ट्स है जो कि हमारा ब्रीदिंग को रेगुलेट करेगा. क्लियर? नाउ फॉर दैट वी हैव टू हैव अ गुड आइडिया अबाउट, suppose if I say this is the forebrain, and the forebrain is attached to the thalamus and the hypothalamus. Clear? Now this is the hindbrain if I say, and this will be your pons and medulla. Clear? So this is your forebrain, this is your forebrain, that is the cerebrum,
which consists of the cerebrum, the thalamus and the hypothalamus. Clear? So this is not to study because it does not control the regulation of breathing. What we have to just understand is the process of the hindbrain. Clear? So we will be generally studying about the hindbrain, and also in the hindbrain we can see that there are the areas this is your cerebellum, this is your pons, and this is your medulla oblongata. Medulla oblongata. Clear? So hindbrain consists of these three parts. cerebellum, जिसको हम लोग छोटा दिमाग भी बोलते हैं, पीछे की तरफ. Clear? This is your pons, and finally underneath is the medulla oblongata. और यही medulla oblongata नीचे आके it forms the spinal cord. Clear? But we will not be going into the detail because this is a chapter regarding to the respiratory system and non-nervous system. Nervous system के अंदर हम लोग हर एक चीज की अच्छी तरह जानकारी लेंगे. Clear? But यहाँ पे regulation के लिए जो जिम्मेदार है, that is a set of these organs which is the pons and your medulla. Both the pons and medulla के अंदर there are certain kind of cell bodies. Clear? There are certain kind of cell bodies in the form of the neurons, and these are actually forming, if I say, the certain kind of respiratory centers. They are actually making certain kind of respiratory centers in our body which will generally control the mechanism of breathing. Clear? Now, if I say this is the medulla and this is your pons. So two centers are there in the medulla which we have to learn, and two centers are there in the pons which you have to learn. So there are total 4 respiratory centers, and together they involve in the regulation of breathing. Clear? So first we will be learning about the respiratory center in medulla. Now medulla will be having the first one, that will be the dorsal respiratory center. Dorsal respiratory center, which is also known as the inspiratory center. This is also known as inspiratory center. Clear? And what is the working of this? Now this actually controls normal inspiration. It controls normal inspiration. And we know, we had already gone through this in our previous class, that during inspiration, that is when we take in air, atmospheric air from the atmosphere, then what are the muscles which are working? It is due to the contraction of the diaphragm, and it is due to the contraction of the external intercostal muscles. Clear? So this dorsal respiratory center, if I ask, this is actually doing the work, that is, it is controlling, if I say, rather than controlling, I can say it regulates the diaphragm, and your external intercostal muscles to contract. It is actually regulating the contraction
of the diaphragm and your external intercostal muscles. क्लियर? अगर आपको कहीं पर इसको लेके डाउट है कि डायफ्राम का क्या काम है रेस्पिरेशन में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या, इंटरकोस्टल मसल्स है क्या, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक, गो बैक इन द वीडियोस विच आई पोस्टेड यस्टरडे, और उसके अंदर आपको पूरा का पूरा अच्छी तरह मिलेगा कि कैसे करके मैकेनिज्म होता क्या है, कौन सा मसल्स आपके इन्वॉल्व है, ठीक, तो उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए अच्छी तरह, तो आपको समझ में आ जाएगा. क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं? नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी सेंटर्स, एंड रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर जनरली लोकेटेड इन टू of the part of the hindbrain, that is your medulla and your pons. First, we are discussing about the two respiratory centers which are located in the medulla. Clear? That is, the one will be your dorsal respiratory center, which is also known as inspiratory center. और ये एक्चुअली कंट्रोल क्या करेगा? इट विल बी कंट्रोलिंग द मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन. क्लियर? और नॉर्मल इंस्पिरेशन में हमें कल पता चला था कि कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं. दैट इज योर द फ्रेनिक मसल्स ऑफ द डायफ्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. तो ये दोनों जो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ विच रेस्पिरेटरी सेंटर? दैट इज द डॉर्सल. एंड वेयर इज द डॉर्सल लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन द मेड्यूला. क्लियर? अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, सॉरी, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, देन वी विल बी हैविंग द वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर. वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर. क्लियर? और वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर को हम लोग एक्सपीरेटरी सेंटर भी बोलते हैं. एक्सपीरेटरी सेंटर भी बोला जाता है. क्लियर? नाउ व्हाट आर दिस वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर इन्वॉल्व्ड इन? किसमें? ना देखिए, ये इट इज कंट्रोलिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन. जैसे आपके डॉर्सल कर रहा था, ये भी नॉर्मल इंस्पिरेशन को तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, प्लस साथ साथ ये कंट्रोल करेगा फोर्सिबल एक्सपीरेशन. इट विल कंट्रोल फोर्सिबल एक्सपीरेशन. और हमें पता है, अभी देखे थे कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के अंदर क्या था ना, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो थे उनको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था. बट यहां पर फोर्सिबल के अंदर उसको जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, जो कॉन्ट्रैक्शन में आपका फोर्सिबल एक्सपीरेशन हो रहा था, उसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद कर रहा है. ठीक है? सो हम लोग बोल पाएंगे, सो इट इज कंट्रोलिंग द वर्किंग ऑफ एक तो डायफ्राम, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, प्लस योर द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. क्लियर है? ठीक है? सो क्या क्या देखिए अच्छी तरह, डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर और वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर. दिस टू टाइप ऑफ सेंटर्स आर लोकेटेड इन योर मेड्यूला. ये करेगा सिर्फ नॉर्मल इंस्पिरेशन को कंट्रोल, बट ये करेगा नॉर्मल इंस्पिरेशन को प्लस जो फोर्सिबल एक्सपीरेशन था, दोनों को ही कंट्रोल करने का काम है द वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर. क्लियर? अब अगर हमें बात करना है कि ये दोनों कहां पे आपका लोकेटेड है, सो सिर्फ मैं जो लार्ज पार्ट ऑफ द पॉन्स एंड दिस वाज योर द मेड्यूला, सॉरी, दिस इज योर द सेरिबेलम एंड दिस पार्ट इज योर मेड्यूला. क्लियर? सो ऑब्वियसली यहां पे आपके दो रहेगा, दैट इज one will be, this is suppose 1, this type of a center 2, और यहां पर एक सेंटर रहेगा सामने के तरफ 3, and suppose this one, this is your 4. Clear? So these are actually the 4 respiratory centers
which are located in our brain, that is the hind brain. Clear? कहां पर क्या है? ये मेड्यूला था, और मेड्यूला का अगर मैं यहां पर देखूं, दिस इज आवर फेस, सो यहां से देखूंगा तो दिस वन, ये हमारा है वेंट्रल, सो इसको हम लोग नाम देंगे द वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर. क्लियर? जस्ट इसके पीछे ऑपोजिट साइड डॉर्सल सरफेस में जो है, इसको हम लोग नाम देंगे डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर सबसे पहले. क्लियर? सो ये दोनों हम लोग बात कर लिए, एंड बोथ ऑफ देम, ये पोर्शन क्या है? दिस इज माई मेड्यूला, दिस इज माई मेड्यूला ऑब्लोंगाटा. तो इसके अंदर एक डॉर्सली प्रेजेंट होगा और एक वेंट्रली प्रेजेंट होगा. वेंट्रली का काम ज्यादा रहेगा, वो नॉर्मल इंस्पिरेशन भी करवा रहा है, साथ साथ फोर्सिबल एक्सपिरेशन में लिए भी जिम्मेदार है. बट इफ आई टॉक अबाउट द डॉर्सल, जो पीछे की तरफ होगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? इट विल बी टेकिंग पार्ट इन द नॉर्मल इंस्पिरेशन. ये अच्छी तरह समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आ चुका है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन योर पॉन्स. पॉन्स के अंदर जनरली अगेन देर आर टू टाइप्स. द फर्स्ट वन विल बी योर द न्यूमोटैक्सिक सेंटर. न्यूमोटैक्सिक सेंटर, यह आपका सबसे पहला वाला है, और दूसरा वाला है एपनियोस्टिक सेंटर. एक हो जाएगा द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एंड अदर विल बी योर एपनियोस्टिक सेंटर. सो लेट अस गेट थ्रू इट कि ये है क्या. अब देखिए, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है, दिस इज एट द अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स. सपोज दिस इज योर पॉन्स, सो ऊपर में जो रहेगा दैट विल बी योर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और जस्ट इसके नीचे जो रहेगा दैट विल बी योर एपनियोस्टिक सेंटर. क्लियर? अब ये जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होके रखा हुआ है, ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करेगा ना? दिस विल बी हेल्पिंग टू इनहिबिट, इट एक्चुअली inhibits the rate of respiration. It inhibits the rate of respiration, whereas just इसका opposite काम होगा if I talk about the apneostic center, that is, it will be exciting the rate of respiration. Exciting the rate of respiration मतलब ना, एक्चुअली ये दोनों मिलके जो करेंगे, ये दोनों मिलके they will be controlling the depth of breathing. They will be controlling the depth of breathing. Depth of breathing मतलब ना, एक्चुअली अगर मैं बोलूं यहां पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन ना लिख के मैं यहां पर लिख सकता हूं रेट ऑफ इंस्पिरेशन. दिस विल बी मच साउंडिंग मोर गुड. रेट ऑफ इंस्पिरेशन, और यहां पर वही सेम रेस्पिरेशन ना लिख के मैं यहां पर लिख सकता हूं रेट ऑफ इंस्पिरेशन. क्लियर? ठीक है कि इंस्पिरेशन रेट को एक बढ़ा देगा और एक इंस्पिरेशन रेट को घटा देगा. और एक्चुअली ये दोनों मिलके क्या कर रहा है ना, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन जो होगा उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे. ये क्या है ना, सपोज देखिए, अगर सपोज करो एक नॉर्मल इंस्पिरेशन करने का जो टाइम है, सपोज नॉर्मल जो हम लोग इंस्पायर करते हैं, इसको लग रहा है 10 सेकेंड्स. इसको करने में लग रहा है
10 सेकेंड, जो नॉर्मल हम लोग ले रहे हैं। अब जब ये काम कर रहा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इनहिबिट का मतलब क्या है? रोकना। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रेस्पिरेशन हो जाएगा वो हो सकता है कि 6 सेकेंड में ही खत्म हो जाए, जो इंस्पिरेशन है। सो ये कब हो रहा है? व्हेन योर द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इज वर्किंग ऑन इट। क्लियर? सो इट इज डिक्रीजिंग द रेट ऑफ इंस्पिरेशन। बट यही चीज आपका जब एपनियोस्टिक सेंटर काम कर रहा है, व्हेन द एपनियोस्टिक सेंटर इज वर्किंग ओवर हियर, तब मैं बात कर सकता हूं ना, अब इट इज एक्साइटिंग द रेट ऑफ इंस्पिरेशन। सो नाउ जो हमारा नॉर्मल इंस्पिरेशन था वो तो था 10 सेकेंड का, बट ये उस टाइम को बढ़ा के शायद कर दे रहा है 12 सेकेंड्स। ठीक है? दिस इज ओनली फॉर द लाइक न्यूमेरिकल पार्ट इज ओनली फॉर रेफरेंस। तो आप खाली ये अच्छी तरह समझो ये इनहिबिशन और एक्साइटमेंट ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। क्लियर? कि नॉर्मल को घटाने के लिए न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का काम होगा, और जो आपका एपनियोस्टिक सेंटर है वो एक्चुअली क्या करेगा? उसको बढ़ाने का काम करेगा। तो ये दोनों मिलके एक्चुअली आपका जो डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग है या जो डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन है कि कितना सांस हमारे अंदर आना चाहिए, व्हाट इज द आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, ये दोनों को ही कंट्रोल करने का जो काम है, दैट इज योर न्यूमोटॉक्सिक एंड योर एपनियोस्टिक सेंटर। समझ में आया बहुत अच्छी तरह? अब काफी बार ये पूछा जाता है कि ये दोनों कहां पे प्रेजेंट रहता है और आपका जो वेंट्रल और डॉर्सल ये कहां पे प्रेजेंट रहता है, तो वो भी हमें समझ लिए है। अब इन दोनों को भी देखते हैं एक बार थोड़ा सा। ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम के अंदर नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस डायग्राम। सो ये जो 1 और 2 यहां पे लिखा हुआ है, ये जो 1 और 2 लिखा हुआ है, ये जो होगा ऊपर की तरफ, दिस विल बी योर न्यूमोटॉक्सिक सेंटर हो जाएगा ये। और ये नीचे वाला जो है ये बन जाएगा आपका एपनियोस्टिक सेंटर्स। क्लियर? ठीक है? सो दिस इज योर एपनियोस्टिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर और डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर। मतलब ये सारे के सारे मिला के, ये सारे के सारे आपका मिला के क्या बन जाएगा? ये दोनों मिला के आपका बन जाएगा योर रेस्पिरेटरी सेंटर्स, रेस्पिरेटरी सेंटर्स। क्लियर? विच आर लोकेटेड इन द, कहां पे है? इन द हाइंड ब्रेन। ठीक है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट। सो हम लोग अभी तक क्या बात किए ना? हम लोग अभी तक बात कर लिए अबाउट द कंट्रोल। वो भी कैसा कंट्रोल? द नर्वस कंट्रोल। कैसा करके हो रहा है, कौन कर रहा है, ये हमें देख लिया अच्छी तरह। ठीक? नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट मेड्यूला एंड वी डिस्कस्ड अबाउट पॉन्स। ये पूरा का पूरा चार्ट आपको अच्छी तरह याद रखना है कि कैसे करके कौन किसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक? अब हम लोग बात करेंगे अबाउट योर द केमिकल कंट्रोल। Now we will be going to discuss about the chemical control या chemical regulation of breathing. सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो ये केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग है, ये किसके लिए हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वही सेम केमोरिसेप्टर्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमोरिसेप्टर्स। क्लियर? और ये केमोरिसेप्टर्स है क्या ना? जो कुछ केमिकल को सेंस करेगा, वो केमिकल कहां पे प्रेजेंट होगा? ऑब्वियसली आइदर इन द ब्लड। क्लियर? ठीक? क्योंकि ब्लड के अंदर ही आपका गैसेस होते हैं, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 इज ऑकरिंग थ्रू द ब्लड। सो उस ब्लड को एक्चुअली चेक करेगा, वो ब्लड जहां जहां पास होगा, जब पास हो रहा है वहां पर कुछ ऐसे आपके केमोरिसेप्टिव सेल्स वहां पे प्रेजेंट होता है इन द ब्लड वेसल्स। सो हमें देखना है कहां कहां ये केमोरिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट है ना। सबसे पहले ये केमोरिसेप्टर्स काम क्या करेगा वो एक बार देख लेते हैं।
ना सबसे पहला हो जाएगा टू सेंस द CO2 कंसेंट्रेशन। CO2 कंसेंट्रेशन कहां पे? इन द ब्लड। ब्लड के अंदर CO2 का कंसेंट्रेशन कैसा है, सबसे पहले उसको सेंस करेगा। दूसरा, इट विल सेंस द pH। क्लियर? pH मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कितना एसिडिटी है, कितना बेसिसिटी है, वो देखेगा इन द ब्लड। मतलब ब्लड के अंदर जो pH कंट्रोल हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका संबंधित इसको लेके है। क्लियर? सो CO2 और pH। क्लियर? अब एसिडिक pH नहीं होना चाहिए, ये बोला जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कहां कहां है। तो सबसे पहले देखते हैं कि केमोरिसेप्टर्स हमारे बॉडी के अंदर कहां कहां प्रेजेंट होता है। सबसे पहले, वेयर आर दीज केमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट? ना दे आर प्रेजेंट first of all, there is a chemosensitive area, और ये एरिया कहां पर है? हमारे मेड्यूला के अंदर। ठीक है? सो इन द मेड्यूला देयर विल बी अ केमोसेंसिटिव एरिया। ठीक? और ये केमोसेंसिटिव एरिया भी यही काम करेगा, CO2 कितना है वो देखेगा ब्लड के अंदर, और pH कितना है वो देखेगा। दूसरा, आपके केमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन द कैरोटिड आर्टरी। अब ये क्या है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होता है, और सिमिलरली ये आपके प्रेजेंट होता है इन द आयोटिक आर्च। आयोटिक आर्च के अंदर भी प्रेजेंट होता है। और सर ये क्या सब लिख रहे हो आप लोग, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक? जस्ट बी विद इट। तो केमोसेंसिटिव एरिया सबसे पहले कहां पे होगा? मेड्यूला। ठीक? दूसरा कैरोटिड आर्टरी, और आपके आयोटिक आर्च। तो ये कहां पर प्रेजेंट होता है? बहुत अच्छी तरह देखिए। दिस इज योर हार्ट, सपोज these are the 4 chambers to it. This is your the right side and this is your left side. So this will be your right auricle, right ventricle, left ventricle, left auricle. Clear? हमें पता है कि इस लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका एक आर्टरी, द लार्जेस्ट आर्टरी जो हमारे अंदर होता है, वो मूव करते हैं, और वो ऐसे ही करके एक आर्च बना के फिर नीचे से वो चले जाते हैं। ठीक? दिस आर्टरी की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर? और इस आर्टरी को हम लोग क्या नाम देते हैं ना? इसी आर्टरी को हम लोग नाम देते हैं आयोटा। और ये जो आर्च है, ये जो आर्च बनाया है, इसको हम लोग नाम देते हैं आयोटिक आर्च। आयोटिक आर्च। क्लियर? ठीक? दूसरा, यहां से आपका एक यहां से आपका एक ब्लड वेसल ऊपर की तरफ जाएगा, और वो फिर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? इस ब्लड वेसल को हम लोग नाम देते हैं कैरोटिड आर्टरी। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? कैरोटिड आर्टरी। क्लियर? अब इस कैरोटिड आर्टरी और आयोटा के अंदर 2 आपके ऐसे नोडल पोजीशंस होते हैं। एक नोडल पोजीशन होता है आपका ऑन द कैरोटिड आर्टरी, और एक पोजीशन होता है आपका इन द आयोटिक आर्च। इसको हम लोग नाम देते हैं योर कैरोटिड बॉडी। कैरोटिड बॉडी। और इसको नाम देते हैं हम लोग आयोटिक बॉडी। आयोटिक बॉडी। क्लियर? और ये जो दोनों हैं, ये दोनों मिलके आपका बन जाएगा द केमो रिसेप्टर्स। ठीक? और ये केमो रिसेप्टर्स एक्चुअली क्या काम करेगा ना? ये जो 2 केमो रिसेप्टर्स है, इन दोनों केमो रिसेप्टर्स को
हमारा मेन काम हो जाएगा क्या चीज करना ना, ये आपका काम करेगा जो हम लोग पहले ही यहां पे डिस्कस कर चुके थे, दैट इज दे विल बी सेंसिंग द CO2 concentration in the blood and they will be sensing the pH in the blood. Clear? अब कभी कभार इन दोनों को मतलब द कैरोटिड आर्टरी और ये जो आयोटिक आर्च है, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं पेरीफेरल केमोरिसेप्टर्स। पेरीफेरल केमोरिसेप्टर्स। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस नीट में भी पूछे जाते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग फाइंड आउट द पेयर विच विल बी फॉर्मिंग द पेरीफेरल केमोरिसेप्टर्स। क्लियर? सो आपका हो जाएगा द कैरोटिड आर्टरी एंड योर आयोटिक आर्च। इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दोनों के अंदर ही देयर इज अ स्पेशल नॉच या देयर इज अ नोड प्रेजेंट। ठीक है? और इन दोनों नोड को हम लोग एक तो नाम देते हैं कैरोटिड बॉडी, एक को नाम देते हैं हम लोग आयोटिक बॉडी। और ये दोनों करेगा क्या? ये दोनों मेनली करेगा, इट विल बी सेंसिंग द CO2 कंसेंट्रेशन और इट विल बी सेंसिंग द pH इन द ब्लड। ठीक है? अब करेगा क्या ये काम मेनली ना, सपोज करिए आपके बॉडी के अंदर एक तो CO2 को कंसेंट्रेट मतलब कंसेंट्रेशन चेक करेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर ब्लड के अंदर CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, सपोज ये सेंस किया और सेंस करके इसको पता चला कि यस ब्लड के अंदर आपका जो CO2 का आपका मात्रा है दैट इज नॉर्मल से आपका ज्यादा है। सो ऑटोमेटिकली ये क्या कर देगा, ये हमारा जो इंस्पिरेशन रेट है, इंस्पिरेशन रेट को आप खुद समझो। इंस्पिरेशन रेट क्या है ना, जिस रेट से आपका ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है। तो ये रिसेप्टर सबसे पहले सेंस कर लिए कि हां CO2 जो लेवल है वो हमारा नॉर्मल लेवल से ज्यादा है ब्लड के अंदर। सो ऑटोमेटिकली वो इंस्पिरेशन रेट को क्या कर देगा, वो इंस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि जैसे ही इंक्रीज होगा सो तुरंत हमारा ऑक्सीजन आएगा और ऑक्सीजन आके जो हमारा जो ये CO2 बढ़ रहा था उसको कंट्रोल कर देगा। क्लियर? सो एक आपका CO2 का कंसंट्रेशन कैसा करके करना है वो आपको समझ में आ गया। दूसरा हम लोग बात करेंगे pH। अब बोलोगे सर ये एसिड कहां से आ गया, ये हम लोग pH देखना पड़ेगा। खुद सोचो, जो CO2 है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। सो हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो पानी है उस पानी के साथ एक्ट करके ये बन जाता है एक एसिड H2CO3। और क्या नाम है इस एसिड का? इसका हो जाएगा कार्बोनिक एसिड। आया ना? ये तो पहले ही जानते हो आप लोग। सो अगर आपका लेवल ऑफ CO2 बढ़ रहा है सो एक तो आपको पता चलेगा वैसे ही, दूसरा कहां से पता चलेगा ना, इस ब्लड का pH देखते हुए। अगर ब्लड का pH ज्यादा हो रहा है मतलब CO2 ज्यादा है, सो अगेन द सेम थिंग विल बी कि इफ pH लोअर्स डाउन, यहां पे क्या है pH अगर लोअर हो जाएगा मतलब एसिडिटी ज्यादा है। pH का जितना कम होगा 7 से जितना नीचे आता जाएगा उतना ही ना उसका एसिडिटी बढ़ता जाएगा। ठीक? और अगर एसिडिटी बढ़ेगा तो उसका मतलब है उसका किस लिए बढ़ रहा है, CO2 के लिए बढ़ रहा है। तो जैसे ही pH आपका नीचे चला जाएगा नॉर्मल से, तुरंत अगेन जो इंस्पिरेटरी सेंटर है वो सिग्नल्स मिल जाएगा उसको, और इंस्पिरेटरी रेटर काम करके हमारा जो रेट ऑफ इंस्पिरेशन है, उस इंस्पिरेशन रेट को ये क्या करेगा, सेम ये इसको बढ़ा देगा। क्लियर है? ठीक? सो आज जो भी चीज पर है वो नीट के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेम चीज इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ योर NCERT, जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं डिसऑर्डर्स से पहले। क्लियर? सो ये रेगुलेशन हम लोग पहले ही देख लिए हैं। इसके बाद हमें आना है अबाउट द पल्मोनरी वॉल्यूम्स, कि कितने वॉल्यूम ऑफ, जब नॉर्मल हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे अंदर आ रहा है। आपका जब फोर्सिबल कर रहे हैं या फोर्सिबल छोड़ रहे हैं उस हवा को तो कितना वॉल्यूम बाहर जा रहा है। टोटल कैपेसिटी क्या है लंग्स का।
सो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सब चीजें डील करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. बट ऑल द पॉइंट्स विच इज बीन मेंशन, विच आई हैव डिस्कस्ड, आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट पर्पस. सो प्लीज गो थ्रू दिस. और पुराने वीडियोस देखने के लिए अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट योरसेल्फ सब्सक्राइब्ड. और जैसे ही हम लोग कुछ वीडियोस डालते हैं, टू रिसीव द डेली अपडेट्स, टू रिसीव द नोटिफिकेशंस, यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन ओवर हियर. सो आप भी करिए. अगर आपके साथ कोई दोस्त है जो नीडी है, जिसको आपको जरूरत है, वो आपका लेक्चर हो, क्योंकि सारे घर पे बैठे हुए बेटा, तो आप भी देखो, आपके फ्रेंड को भी थोड़ा सा सहायता दो. यू शेयर दिस वीडियोस विद देम ऑल्सो. और अगर किसी को भी कोई डाउट वगैरह लगता है, कोई कमेंट वगैरह लगता है, तो इस वीडियो को खत्म करके इसके अंदर ही जो कमेंट सेक्शन है वहां पे नीचे आप कमेंट भी कर सकते हो. क्लियर. और जस्ट एक रिक्वेस्ट, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, क्योंकि उससे हमें मोटिवेट मिलता है, ताकि हम लोग और आगे अच्छे अच्छे काम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको प्रेजेंट कर सके. सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड. थैंक यू.